Welcome, friends. This initiative is for the purpose of educating people about mathematics. We've seen so many students struggle all their lives trying to understand and solve the mathematics. However, while they do get education, many a times when they are actually struggling with their problems, they don't have a ready-made means which they can access. So if I'm studying at 10 in the night, I might not have the tutor behind me. If I'm working late, I don't have anyone to help me out with my math problem. If my dad is working late, I don't have any means to solve my problems. So where do I go? Well, you're all welcome to come and understand maths from these lectures. The idea behind these lectures is to educate people and help students grapple with what they find one of the most difficult things in the world when they get into the education system. But needless to add, this is also one of the most interesting things that the mankind has ever created, because this helps us to do things which we otherwise might have been impossible. So this is an attempt on our part to help you out, and we hope you would enjoy this and would also encourage others to take help from these lectures. So moving on, the first one for today is the numbers. Now these lectures have been prepared to make you understand the concept. Once you understand the concept, there are certain practical problems which have been dealt with. And once you understand and do these practical situations, no matter which board you are studying from, whether it be the ICSE board or the CBSE board or any other board where you want to understand and do maths, we hope and we are sure that these lectures are going to bound to help you. So to start with, we wish you all a very good luck and have a happy learning. Now moving on to the job at hand, let us understand what do we mean by numbers. In order to keep this thing simple, what we have done is that we are explaining this thing in English, and at the same time the same concept is also repeated in Hindi at the same point in time, so that people who are good at English can understand it. At the same time, people who are not good at English and want to use Hindi and understand it better, they can use it that way also. So now I'm going to explain the same thing in Hindi, and I hope people would use this and enjoy it very much. इन लेक्चर्स को बनाने के पीछे हमारा हाथ ये था कि बहुत से बच्चे जो कि मैथ्स समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, मेनली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कई बार उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। स्कूल में ऑब्वियसली लिमिटेशन होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो कई बार हमें समझने में चीज़ें दिक्कत होती है। हम ट्यूशन भी पढ़ते हैं और टीचर्स हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन कभी बारी जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मान लीजिए अगर आप रात को 10 बजे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, कहीं आप समझना चाहते हैं कि पॉइंट क्या है, वो आपको नहीं मिल पाता। तो ये जो लेक्चर्स हम बना रहे हैं, इसके पीछे जो हमारा हाथ है, जो हमारी मंशा है, वो ये है कि आप इसको समझ सकें और अच्छी तरह जब भी आप चाहें कर सकें। हमारे देश में बहुत से लोग आज बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इसीलिए कई बार ये होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो लेट आते हैं, तो और उसमें उन स्थिति में हमारा सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल पाता। तो उन समय पर आप इन लेक्चर्स को देख के अपना काम कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर्स समझ में आएंगे और आपको इनसे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं पे आपको दिक्कत है या कुछ वो है, तो हमारे ईमेल आईडी पे आप हमारे को भेज सकते हैं, या हमारे जो भी यूट्यूब में जहाँ पर भी अपलोडेड हुआ है वहाँ पर आप अपना कोई कमेंट छोड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले लेक्चर्स में उसे सुधार सकें। आपकी सुविधा के लिए ये हमने लेक्चर्स जो हैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है। हमने कोशिश की है कि इसको इतना सरल बनाए कि आपको हर व्यक्ति इसको समझ सके। पर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कठिनाई होती है इनमें और कुछ तरीके हैं जिससे आपको ये उम्मीद है कि ये और सरल हो सकते हैं, आप हमें बताइए और हम
अगले अपने लेक्चर्स में उसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर्स का खेल क्या होता है। तो आज हम नंबर्स की दुनिया में चलेंगे। सबसे पहली चीज जो हम नंबर्स में देखेंगे वो ये है कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करें, कौन सा नंबर बड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि नंबर्स जो है इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। नंबर 1 से शुरू होता है और 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास अलग अलग नंबर हैं तो मैं ये कैसे देखूंगा कि उनमें से बड़ा कौन सा है। Then I see making numbers with conditions. Now what does this mean? This means basically कि अगर सपोज मुझे कुछ कंडीशन दी हुई है नंबर बनाने की, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा within those same conditions. And the third point in this lecture is the ascending and descending orders. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बेसिकली ये होता है कि I have to put in numbers in sequence, various sequence which I can. So ascending and descending numbers is basically putting into action the smaller numbers first and then the bigger ones. ये सब चीजें आपको आगे क्लियर होंगी जैसे मैं आपको डिटेल में अब इनके बारे में डिस्कस करूंगा। So now we move on to the first thing, which is comparing numbers. अब हम नोटते हैं सबसे पहली चीज पे जिसका वो है आइडिया है कि हाउ डू आई कंपेयर नंबर्स। कंपेयर नंबर्स नॉर्मली मान लीजिए आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, से 292, 867, 1867 और 50,000। अब आपको इन चारों नंबर्स में यह देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट नंबर अमंग्स दीज 4। तो अगर आपको ये नंबर कंपेयर करने होते हैं तो इसका सबसे पहला रूल जो है रूल 1, आप ये काउंट कीजिए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट in each one of these numbers. Count the number of digits. आप सबसे पहले ये काउंट करेंगे कि हर एक नंबर में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नंबर है 292, सेकेंड इज 867, third is 1867 and the fourth is, इसमें मेरे कितने डिजिट हैं 1 2 3, इसमें अगेन 3, इसमें 4 और इसमें 5। तो पहला रूल क्या होता है कि आप इन सब में काउंट कीजिए कितने डिजिट हैं, जिस भी नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट होंगी दैट इज द बिगेस्ट नंबर। जिस नंबर में सबसे ज्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ा नंबर होगा। सो द रूल 1 इज द नंबर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इज द बिगेस्ट। मतलब